Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको वंदना करता हूँ। Please turn your Bible to 2 Thessalonians 3rd chapter. We'll read verse 3. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय Verse तीसरा 3. वचन की और आपके बाइबल को फिर आइए। But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. This is our New Year promise. ये नया साल का वायदा है। I hope you have done the homework what I have given. मुझे आशा है कि आप जो मैंने आपको घर में काम करने के लिए देते वो किए बोल के। Amen. Now 3 months over. 3 महीना हो चुका है। We are into the 4th month. हम चौथा महीने में हैं। We have to check now what we have written. Anything is happening. और जो हम लोग लिखे हैं वो कुछ तो हो रहा क्या बोलकर हम लोग जांचना चाहिए। If nothing is happening, better we change. अगर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा तो अच्छा हो ये है कि हम वो बदलना चाहिए। There should be progression in your life. आपके जीवन में आगे जाने का बढ़ोतरी रहना चाहिए। These 3 months, at least something should have happened. और ये 3 महीने में कम से कम कुछ तो कुछ होना है। Hallelujah. हालेलुया। ना होना नहीं होना था। होना था. Something would have happened by these 3 months. ये 3 महीने में कुछ तो कुछ होना था। If it has not happened, you are not serious. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम गंभीरता से नहीं है। हम नहीं. I am not included in that. मैं उसमें मैं ये शामिल नहीं कर लेता हूँ, तुम नहीं है बोल के। If you are not seen progression, you are not serious about your life. You are not serious about the word of God. अगर आपके बढ़ोतरी में, अगर आपके जीवन में, अगर आगे जाने में अगर आप गंभीरता से नहीं है तो आपके जीवन में होता ही नहीं। You are not serious about your own life. आपके स्व जीवन के लिए आप गंभीरता से नहीं है। You are not serious about how God is going to help you. और आप गंभीरता से नहीं है कि कैसा प्रभु ने आपको सहायता करता है बोल के। Because God gave His only begotten Son for your life. क्योंकि आपके जीवन के लिए खुदा ने उसका एक लौता पुत्र को दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Here the Bible says God is faithful. यहाँ पे बाइबल कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is faithful to fulfill every promise in your life. और वो विश्वास योग्य है कि आपके जीवन में सारे वायदों को पूरा करने में God will establish you. खुदा आपको स्थिर करेगा। Hallelujah. Hallelujah. He will do it. वो करता है। All God needs is your cooperation. परमेश्वर को एक ही चाहिए कि आपका संयोग, आपका सहभागिता उनको चाहिए। Why God needs your cooperation? क्यों खुदा को आपका संयोग यानी आपका सहभागिता चाहिए? Because He made a plan for your life. क्योंकि आपके जीवन के लिए उन्होंने योजना बनाया है। He has decided how you should come up, how you should prosper. और वो निर्धार किया है कि आप कैसा ऊपर आना चाहिए, आप कैसा उन्नति में आना बोल के। The reason God needs your cooperation is you have to fit in His plan. और खुदा ने उसको क्यों सहयोग करना चाहिए बोले तो उनकी योजना में आप सही जगह में जाना चाहिए। For that purpose, Bible says God puts His desire in your heart. उस उद्देश्य के नाते खुदा ने आपके अंदर आशाओं को डाला है। When you read the Bible, अगर हम बाइबल पढ़े तो desire comes. आशा आता है। God puts a desire. और खुदा आशाओं को डालता है। When God not only puts a desire, Bible says He gives us the ability to fulfill the desire. खुदा खाली आशा ही नहीं डालता है, वो पूरा करने में वो सामर्थ्य देता है। This desire is not from the world. और ये आशाएं संसार की ओर से नहीं है। This desire is from the word. ये आशाएं वचन के द्वारा है। Amen. Say, my heart's desire is not from the world, it is from the word of God. मेरे दिल की आशाएं संसार की ओर से नहीं है, वचन की ओर से है। This word of God puts a desire. और ये वचन आपके अंदर आशाओं को डालता है। And that desire, after taking it, you should not keep quiet. और वो आशाओं को लेके आप ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठना है। You should pray for your desire. आपकी आशाओं के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। Jesus says, if you abide in me and my words abide in you, you shall
pray your desire, you shall ask your desire, it shall be done unto you. और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन आपके अंदर बने रहे तो आप जो कुछ भी मांगो आशा रख के वो आपके लिए पूरा हो जाएगा बोल के। How simple God made it. कितना आसान खुदा ने बना दिया है, So simple. बहुत ही आसान। He puts a desire वो आशाओं को डालता है and he says you pray that desire, और वो आशा के लिए प्रार्थना करो बोलता है, it will be done. वो हो जाएगा। What is simple we don't give attention. कौन सा जो सरल है यानी आसान है वो हम नहीं करते हैं। Hello. Is it simple or difficult? ये बहुत ही कष्ट है क्या आसान है? Praying for your desire is simple or difficult? आपकी आशाएं के लिए प्रार्थना करना वो कष्ट है क्या आसान है? And your words should abide in you. और वो वचन आपके अंदर बनी रहना Your चाहिए। desire should be based on the word. आपकी आशाएं वचन के ऊपर ही रहना चाहिए। That's why I told you, write the desire as your goal and write the scriptures beside that. इसीलिए मैं आपको कहा था वो लक्ष्यों को लिखिए, लक्ष्यों के बगल में आप वहां पे वायदों को वचनों को लिखिए बोल Your के। goal should be your desire. Desire should be your goal. आपकी लक्ष्य आपकी आशा रहना चाहिए, आपकी आशा ही वहां लक्ष्य रहना चाहिए। Then make a prayer of faith. और विश्वास की प्रार्थना करिए Go and pray. Believe that you already received it. और जाके प्रार्थना करिए, आप विश्वास करिए कि आपके लिए हो जाएगा बोल के आपके लिए हो जाएगा। Mark 11:24. और मार्कुस का 11वें अध्याय 24वें वचन में Whatever I desire, I pray, I believe, I have received it, then I will have it. जो कुछ भी मैं आशा रख के प्रार्थना करता हूं तो मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए वो हो चुका है बोल के, मेरे लिए वो हो जाएगा। It will happen. वो हो जाएगा। You will achieve every goal in your life. आपके जीवन में हर एक लक्ष्य को आप पहुंचेंगे। Every desire you will see the fulfillment. हर एक आशाएं आप पूरा होने का देखते हैं। You will not have one desire you will regret at the end of the life and said it is not fulfilled. आपके जीवन के अंत में आप वहां पे नहीं रहते हैं कि मेरी आशाओं में एक भी ऐसा पूरा नहीं हुआ है बोल के। Everything will be done. सब कुछ पूरा हो चुका रहता है। Hallelujah. Hallelujah. I told you, if you have to come to this stage, you have to handle the mountain like problem in your life. और इस जगह में आने के लिए जो पहाड़ के जैसे समस्या है ना उसको संभालने में आप रहना चाहिए और सीखना चाहिए। The problem which is existing for long time in your life, it's like a mountain. और जो समस्या आपको बहुत समय तक आपको उसको लेके झेल रहे ना वो समस्या ही पहाड़ के जैसा। It takes all your effort, all your attention, all your thought life, everything is focused on the problem. आपकी सोचों में आपके परिश्रम में आप जो कुछ भी करते हैं ना वो सभी चीजों में सारी दृष्टि वो एक ही समस्या को ऊपर जाता है। Maybe some sickness, शायद कहीं बीमारी हो सकता है, or maybe loans, शायद कर्जा हो सकता है, or maybe some financial problem, शायद कुछ भी पैसे का कमीपन या or उसका, maybe some family settlement. शायद आपका पारिवारिक सही होने में। It's daily standing in front of you. और हर दिन आपके सामने ऐसा खड़ा रहे जैसा। Now you are supposed to move that mountain. आप उस पहाड़ को हटाना चाहिए। When you should speak to the mountain, कब आप उस पहाड़ को कहते हैं it will go and fall into the sea. और वो जाके समुद्र पर जा पर पड़ बोल The के problem what you are seeing for long time will disappear from your sight. जो बहुत दिनों से बहुत सालों से जो आप समस्या देख रहे हैं आपके नजर में वो जाने का आप आपके आंखों से देखते हैं। How it is possible? वो कैसा हो सकता है? By faith. विश्वास के जरिए। Amen. So I have been teaching about faith, from the definition, principles, so many things. और मैं बहुत सारे उसका वाक्य ना उसका मतलब क्या है उसको क्या होता है ऐसा विश्वास मैं आपको नियमों के बारे में सब कुछ सिखा रहा हूँ। I hope you are by-hearted the definition. मुझे निरीक्षा है कि वो डेफिनेशन जो वाक्य मैं आपको दिया था आप वो कर रहे बोल के। Better you do it. वो अच्छा है आपके लिए वो करो। Then you will have a revelation of faith. क्योंकि आपको उस विश्वास के बारे में प्रकाशित वाक्य रहता है। Hold on, say after me one more time. Faith is a substance of the things hoped for, evidence of the things not seen. विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। Hallelujah. So faith and hope is different. विश्वास और आशाएं ये अलग अलग है। Faith is from the heart. विश्वास ये हृदय से, दिल से आता है, Hope is from the mind. और ये निरीक्षण जो आशा बोलते हैं ना, ये मन से आता है। I tell you, the sad thing is most of the believers hope and they think that is faith. उदास की बात यह है कि बहुत लोगों ने आशा रखते हैं वो मन के जरिए, और वो होता नहीं है, And they think that is faith. और वो समझते हैं कि वही विश्वास बोल के, Because they don't know the difference between hope and faith. क्योंकि उन लोगों को विश्वास के और आशा के अंदर क्या वहां पे अलग अलग है बोलकर वो नहीं जाने हैं। Hope and faith both are totally different. विश्वास और आशाएं संपूर्णता से अलग अलग है। Hope is about future. One day God will do it. आशाएं बोले तो वो भविष्य के बारे में, एक दिन खुदा करता है। Faith is not future. Faith is now. विश्वास वो भविष्य के बारे में नहीं है, विश्वास अब के बारे में What बोलता you है। hope one day you will have it, now you are going to receive it. That is faith. जो एक दिन आप पाने के लिए जाने वाले हैं ना, ये विश्वास जो है वो अब भी आपको मिलने वाला है। Now you will have an assurance in your heart. अभी आपके हृदय में, आपके दिल में निश्चय होता है। Now you will have an evidence. अभी आपको एक गवाही रहता है, साक्षी रहता है। Hallelujah. Hallelujah. I told you faith should be in action. और ये विश्वास काम में रहना चाहिए। I told you we have to walk by faith, not by sight. हम विश्वास से चलना चाहिए, देखकर नहीं। Say, I walk by faith, not by sight. मैं देख के नहीं चलता हूँ, मैं विश्वास से चलता हूँ। I told you the best example for walking by sight is Thomas. मैं अच्छे से उदाहरण मैं आपको दिया था देख के चलने का बारे में, वो तोमा के बारे में। Unless I touch the holes in his hand, I put my finger in it, I will not believe. That is Thomas' faith. कब तक मैं उनके हाथों में जो सुराग जो जाले हुए मैं उसके अंदर उंगली डाल के मैं नहीं देखता हूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करता हूँ बोलकर वो देख के चलना है वो। That sense knowledge will not help. और ये पंचेंद्र का जो ज्ञान, जो बुद्धि है, वो काम का नहीं है। That will not move mountain. वो पहाड़ को हटा नहीं सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Abraham's faith. Abraham's faith. और अब्राहम का विश्वास, You know, he got the promise of God. और उसको खुदा का वायदा मिला। You should have a promise of God. आपको खुदा का वायदा रहना You चाहिए, should believe God's word. Keep on believing the promise of God. और खुदा का वचन को, खुदा का वायदों को आप ऐसे ही निरंतर विश्वास करते ही जाना है। You should not consider what you see with the circumstances. और जो स्थिति गतियां जो आपके आंख से देखते हैं उसको आप लेना नहीं चाहिए, You have to thank God by faith. और विश्वास से धन्यवाद करना चाहिए खुदा को। All these things are available for you. Listen again and again till faith becomes clear. और सारी विषय वहां पे अवेलेबल है आपके लिए, वो विश्वास का स्पष्टीकरण आपके मन में, आपके दिल में होने तक आप देखते रहिए। Another 2 weeks I'll teach how faith comes. अभी 2 हफ्ते, आने वाले हफ्ते मैं कैसा ये विश्वास काम करता बोलकर मैं लेके जाता हूँ। अभी 2 हफ्ता Faith comes. कैसा विश्वास आता है, Say how faith comes. कैसा विश्वास आता है। You know, one day one boy was with me. We went out station. I was talking about faith. एक दिन मेरे साथ एक लड़का था, हम लोग यहाँ से शहर से बाहर गए थे, मैं उसके साथ विश्वास के बारे में बात कर रहा था। No, I was just preaching about faith in the church. मैं उस कलीसिया में मैं विश्वास के बारे में वहाँ पे बोधन कर रहा था। So while eating food, he asked me, Anna, if I have a faith, all my problem will be solved. उन्होंने बोले कि आना मुझे विश्वास रहे तो मेरा सारा समस्या का हल होता क्या? I said, well, yes, it will be solved. हाँ, वो समस्या सारा हल होता है। He's a good boy. वो अच्छा Born लड़का, again, spirit filled, loves God. और मसीह में नया जन्म पाया है, आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर को प्रेम करने वाला है। Has lot of family responsibilities. बहुत सारा जो पारिवारिक जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, He has to clear loans, debts. और वो सारा जो कर्जों को वो सब वहाँ पे चुकाना He था। asked me, you think
if I learn faith, if I have faith, I can solve all my problem. वो बोल रहे थे आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास विश्वास रहे तो ये सारा समस्या का हल होता है बोल के। I said yes, and I came off. मैंने उनको बोला हाँ बोलकर मैं वहां से But वापस that night आया। I was sleeping. जब मैं रात में सो रहा था I realized मुझे ऐसा अनुभव हुआ लगा if understanding faith can solve his problem, अगर विश्वास का समझना उनका समस्या का हल करता है तो it will solve the problem in every family. और वो हर एक परिवार में वो समस्या का हल कर सकता है। Hallelujah. All you have to do is take extra effort to learn faith. आपको ये करना है कि थोड़ा सा ज्यादा जो आपका परिश्रम लेके विश्वास सीखिए। And all that I needed is to teach how faith comes, how to release a faith. और मुझे क्या सिखाना है तो कैसा विश्वास आता है, कैसा विश्वास काम में छोड़ना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. So now to begin with, I want to tell you how faith comes, from where it comes. ये शुरुआत करने में ये कहाँ से आता विश्वास, कैसा आता है विश्वास, Hallelujah. What is the basis for this faith? इसका शुरुआत का अंश क्या है ये आने का। No, faith is not some emotional feeling. Faith is not some goosebump experience. और विश्वास बोले तो एक हम मनों में मानसिक तौर पे एक ऐसा लगना, वो वैसा नहीं है विश्वास। Faith is a substance, definite. विश्वास एक वस्तु है, निश्चय है वो। Romans 10:17. रोमियो का पुस्तक 10वीं अध्याय 17वां वचन। So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Hallelujah. हालेलुया। Say after me, faith comes by hearing the word of God. परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है। One more time. Faith comes by hearing the word of God. परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है। Okay, my question. मेरा प्रश्न, From where faith comes? विश्वास कहाँ से आता है Or what is the source of this faith? और ये विश्वास का मूल श्रोता कौन है? What is the source? Basis for the faith. और ये विश्वास का शुरुआत का अंत क्या है, अंश? Are you here? आप यहाँ पे हैं? Hello. One more time I'll tell you. और एक बार मैं आपको बोलता हूँ, Say after me, faith comes by hearing the word of God. परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है। So it means faith comes in us. विश्वास comes in हमारे our- अंदर आता है। From where it comes? कहाँ से आता है? परमेश्वर का वचन. Hallelujah. The basis for my faith is not some imagination, it's not some feeling, it is based on the word of God. और ये कहाँ से आता बोले तो मेरा कैसा लगता है वहां से कैसा लगेगा वहां से नहीं आता है, वो परमेश्वर का वचन से आता है, वही शुरुआत है उसका। I believe the word, I put faith in the word. मैं वचन के ऊपर विश्वास करूंगा, मेरा विश्वास उसके अंदर डालूंगा। Not just word, it is the word of God. वो खाली वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। So when I believe, what is behind my faith? जब मैं विश्वास करता हूं तो मेरा विश्वास के पीछे क्या है? What is behind your faith? आपके विश्वास के पीछे क्या है? Word of God is behind your faith. आपके विश्वास के पीछे परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? आप यहाँ पे हैं? Word of God is what you are believing, no? Behind that is a word of God. जो आप विश्वास कर रहे हैं ना, उसके पीछे परमेश्वर का वचन है। So who is behind the word of God? और ये परमेश्वर का वचन के पीछे कौन है? God
Himself is behind the word of God. परमेश्वर के वचन के पीछे परमेश्वरी है. I'll explain. मैं विवरण करता See, हूँ. you say something, you make sure you do it. आप कहे तो आप वहां पे पक्का कर लीजिए कि ये मैं करता हूं बोल See, के. for example, उदाहरण के तौर में yesterday I told them 6 o'clock I'll come. I'll come to the church. कल का दिन बोले थे 6 बजे यहाँ पे आओ. मैं 6 बजे यहाँ पे आया. Translate slowly, listen to me. I told 6 o'clock I'll come. ना मैंने बोला कि 6 बजे मैं आता हूँ. But 5:45 I called them, can I come? 5:45 को मैं उनको पूछा कि मैं आ सकता हूँ क्या. They said, come. उन्होंने बोले आओ. See, I gave the word. I have to keep up my commitment. I should be behind the word. Make sure what promise I made, I should keep up. और मैंने जो उनको कहा वो वाचा को मैं रखना चाहिए, क्योंकि मैं जो कहा था उसके पीछे मैं हूँ, वो मैं मुझे करना ही है, इसलिए मैं किया. Even same thing, if you say somebody, I will do it, you will make sure you will do it. आप बोलते हैं दूसरों को ये मैं करता हूँ बोल के, आप वहाँ पे पक्का कर लेना चाहिए कि यहाँ में आप मुझे ये करना ही है बोल के. Yes or no? है क्या नहीं? Very difficult to answer, no? Because many times we say sorry, I am बहुत- unable to do it. बहुत बार हम कहते हैं कि मुझे करना हो नहीं सका, मुझे क्षमा करिए I बोल am के. sorry, I'll be late. मुझे क्षमा करिए, मुझे देर हो गया. No, sorry is a word comes. Sometimes it comes often, sometimes it becomes a habit. कई बार ये क्षमा करना कभी कभी आता है, कई बार वो आता ही क्षमा रहे. करना नहीं, क्षमा बोलना. I am sorry. मुझे क्षमा करो बोलना कभी कभी आता है. अब ऐसा आदत ही पड़ जाता है कभी कभी. Sometimes we parents, we promise the children, we will buy chocolate. कई बार हम माता पिता बोलते बच्चों के लिए हम चॉकलेट आपको खरीद We लेते will हैं, buy ice cream. हम आपके लिए आइसक्रीम खरीद लेते हैं बोल के. You promise it, आप वहाँ पे वायदा करते हैं, you may forget, शायद आप भूल जाते हैं, but the child will not forget. लेकिन वो बच्चा नहीं भूलता है. Waiting when my chocolate will come. और वो इंतजार करता है मेरा चॉकलेट कब आता है बोल के. We are human beings. We have sometimes, really we can't keep it up. हम लोग मनुष्य लोग हैं, सच्चाई में देखे तो हम वो वाचा कभी नहीं रख सकते. But when we don't keep up, अगर हम नहीं रखे तो, what happens in the mind of the child? और वो बच्चे के मन में क्या होता है. Next time when you said, I will do it, I will bring it, he will think useless. There is no need to believe. Always he will say sorry. और ये काम जब आप वो बच्चे को बोलते हैं मैं लाता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ बोलने के बाद वो बोलना काम का नहीं है, वो ऐसा ही बोलते हैं लेकिन नहीं करते बोल के. It happens many times. Many times genuinely we want to do, we can't do. It happens. वहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे करना चाहते हैं लेकिन हमको हो नहीं सकता. The reason is we are living in the world. Nothing is perfect. क्योंकि कारण ये है कि हम ऐसा संसार में जी रहे हैं, वो संसार में कौन सी भी परिपूर्ण नहीं है. I can't keep up my commitment because something will rise suddenly. When I go for somewhere, somebody will come home, something will happen. I can't keep up my commitment. मेरा वाचा को मैं सही से रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुरंत ही कोई तो मेरे घर में आते, कोई तो कौन सा तो काम में मैं जा जाता हूँ. Sometimes many believers, I wonder, I don't know whether they will see the watch or not. मैं बहुत बार मैं विश्वासियों को देख के मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि वो लोग घड़ी को देखते क्या नहीं बोल के. They will tell 5 minutes will come home. वो लोग बोलते हैं 5 मिनट में मैं आपके घर में आता हूँ. They will not think whether I have any program or not. वो सोचते ही नहीं मुझे दूसरा अलग सा काम I will प्रोग्राम be है क्या नहीं waiting for बोल के. 5 minutes. मैं 5 मिनट के लिए इंतजार करता रहता हूँ. After 50 minutes they will land up. 50 मिनट के बाद वो लोग आते हैं. Hello. And they say sorry na. और वो बोलते हैं क्षमा करो ना. Because they said sorry. वो मुझे क्षमा करो बोलने के लिए, Where I am supposed to go to that family, I have to say sorry. मैं कहाँ पे कौन सा परिवार में जाना था ना, उन लोगों को मैं क्षमा पूछना चाहिए. अब I like that sorry is rotating in the air. और ये क्षमा पूछना, क्षमा बोलना, ये पूरा हवा में ऐसा ही गुजर रहा है, जा रहा है. No, the world is full of unbelief. Why?
Because we can't keep up the word. क्योंकि संसार पूरा अविश्वास में है, क्योंकि वो वचन नहीं रख सकते. This atmosphere is pregnant with unbelief. You can't trust anybody now because nobody keeps up the time. Nobody keeps up the word. और ये संसार पूरा बुराई में गया है और कोई भी वो समय को नहीं रख सकता है, उनके वाचा को नहीं रख रहे. But good news is, परंतु शुभ संदेश ये है, God never says sorry. खुदा कभी भी नहीं कहता है क्षमा करो बोल के. Sorry only. Shama karo means something. Sorry only. Sorry नहीं कहता है. They think forgiveness means sin again. It will come in their mind. Okay. Sorry only. Say, my God never says sorry. मेरे खुदा कभी भी सॉरी नहीं बोलता है. Say, my Father never says sorry. मेरा पिता कभी भी नहीं बोलेगा सॉरी बोलकर. Why? क्यों? Because he is perfect. क्योंकि वो परिपूर्ण है, He is powerful. वो शक्तिशाली He है is faithful. और वो विश्वास योग्य He है. will fulfill his promise no matter what happens. कुछ भी होने दो, उसका वायदा को वो पूरा करता है. If the promise comes out of his mouth, means you can be assured it is done. 100% it will happen. उसके मुंह से जब वायदा आता है तो आप सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ये मेरे लिए हो चुका है, वो हो गया बोल के. Hallelujah. हालेलुया. 100%. If he says done, it is. You should think of over now. He said over. He will do it. 100% वो बोला है तो हाँ, उन्होंने बोला है ये हो जाएगा, ये हो गया बोल के. See, for example, उदाहरण के तौर there is पे, one scripture says, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. वहाँ पे वचन कहता है निश्चय ही आपको शुभ और अनुग्रह आपके पीछे हो लेता बोल के. Say, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. निश्चय है मेरे जीवन के पीछे अनुग्रह और अच्छाई पीछे हो लेता है. When you are going in the bike, one bike is coming behind you, like that, goodness and mercy will follow you all through your life. कैसा आप बाइक में जाते हैं ना, आपके पीछे आते रहते हैं ना, वैसा अच्छाई और दया यानी करुणा आपके पीछे पीछे आता रहता है. Definite it is. वो निश्चय, वो पक्का. Prosperity will follow you all through your life. उन्नति आपके जीवन भर पूरा आपके पीछे हो लेता है. Amen. आमीन. One day God will not tell, sorry son, today it will not follow you. एक दिन भी खुदा नहीं कहता है बेटा सॉरी आज मैं तेरा पीछे नहीं हुआ बोल के. Because petrol price is increasing, today goodness and mercy will not follow you. क्योंकि आज वहाँ पे पेट्रोल का जो भाव है, पैसा है, वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए तुम्हारा पीछे अच्छाई और दया पीछे नहीं होता है. No, today prosperity will not follow you because gold price is increasing. क्योंकि आज का दिन आपको वो सोना का बहुत भाव बढ़ रहा है, इसीलिए आपके पीछे और ये उन्नति नहीं आएगा बोल के. Hello, are you with me? आप मेरे साथ हैं? We are not controlled by what we see. और जो हम देखते हैं उससे हम नियंत्रण नहीं है. Our faith is not what we see. हम जो देखते हैं ना उसके ऊपर हमारा विश्वास The नहीं है. source of my faith is God's word. मेरा विश्वास का मूल श्रोता परमेश्वर का वचन है. God is behind his word. खुदा उसके वचन के पीछे है. He will not tell after 1 year, sorry, today I can't feed you, I can't take care of your family. वो नहीं कह सकता है कि आज का दिन मैं तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए खाना नहीं खिलाए बोल के. He can't tell, I will not do, I can't do. वो मुझे नहीं हो सकता है, मुझे नहीं हो जाएगा बोलकर वो नहीं Oh, बोल सकता. sorry, today I didn't provide money, he will not tell. ऐसा वो नहीं बोलते. वो सॉरी आज उनका पैसा का जरूरत को मैं पूरा नहीं किया बोल के. Rather he will tell, look at the birds in the air which neither soweth nor reapeth, your heavenly Father feeds them. How much more precious you are. वहाँ पे वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो नाई कुत्ते नाई खलियानों में इकट्ठा करते, फिर भी आपका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Are you happy? आप खुश हैं? Say after me, my heavenly Father gives no excuses. मेरा स्वर्गीय पिता मुझे कौन सा भी कारण नहीं देता है. He will completely
fulfill his promise. वो परिपूर्णता से उनका वायदों को वो पूरा करता है. All you have to understand, God and his word, they are one. आप परमेश्वर और वचन दोनों एक ही है बोलकर आप समझना चाहिए. God and word are not two different things. God and word are one. They are one. His action is based on his word. खुदा और उनका वचन वो दूसरा अलग अलग नहीं है, उनका एक ही है. उनका काम वो वचन के ऊपर ही रहता है. See, what we speak, we act. जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं. Yes, our words and our action, they go together. हमारा बात यानी हम बोलना, हमारा जो करना वो एक दूसरे से जुड़े जाता है. If you have a desire to keep up your word, you will do anything for the promise what you make. और जो आप वचन रखने के लिए आप कौन सा भी आशा को वहाँ पे करने के लिए जाते हैं. Because you promise, you will do it. क्योंकि आप वायदा किया है आप वो करते हैं. You make sure what you say, it will happen. जो आप वहाँ पे पक्का कर लेते, निश्चय कर लेते, जो आप कहे वो आपको हो जाए करते बोल के. How you are behind your word so that it will happen, the same way God is behind his word. कैसा आपके वचनों में आप उसको करने में पीछे रहते ना, उसी तरह खुदा भी वो जो बोले ना उसके पीछे खुदा रहते वो करने में. And for your faith, आपके विश्वास के लिए, behind your faith is the word of God. आपके विश्वास के पीछे परमेश्वर का वचन है. That is why I told you, इसलिए मैं आपको बोला था, write quotations with your goals. आप जो लक्ष्य लिखते हैं ना उसके बगले में वायदों को लिखे, वचन को लिखे बोलकर मैं बोला था. Quotation. Faith is not something, sometimes we feel too spiritual, too much. We believe, God and our blessings and white horse angels will come. We will pray in tongues like that, lightning should happen and money should pour on our head. और विश्वास बोले तो हम इतना आत्मिकता से बोलते हैं कि एक स्वर्गदूत आके वो घोड़े में बैठ के सफेद कलर का घोड़ा आके वो आके पूरा वो सारे आशीष हमारे ऊपर बरसाता है. पैसा. और एक चमकने वाली एक चमक लाइट आता है. Then all the money will come on your head. और सारा पैसा आपके सर के ऊपर आके गिरता है. Then overnight you will become rich. और वही रात आप अमीर हो जाते हैं बोल के. Like that means very easy it is. वैसा बोले तो बहुत ही सुलभ वहाँ आसान है. Like that sometimes only preachers will tell. वैसा खाली जो प्रीचर्स जो बोलते हैं ना प्रसंग वो बोलते हैं. Tonight, you will become rich. I said, how will you become rich? If you don't know faith. आज ही रात नहीं, आज ऐसे नहीं, वो आपको विश्वास आप नहीं जाने हैं. Our life works on faith. हमारा जीवन विश्वास के ऊपर काम करता है. Hallelujah. Now come with me to Jeremiah 1st chapter. यिर्मयाह पहला अध्याय की ओर आप आइए. Verse 12. यिर्मयाह पहला अध्याय 12वें वचन. Every day you should read this verse. हर दिन ये वचन को पढ़िए. I'll tell you, you will move every mountain in life. मैं बोलता हूँ हर दिन आपके जीवन में हर एक पहाड़ों को आप हटाते हैं. Every goal you will achieve. हर एक लक्ष्य को आप पहुँचते हैं. Jeremiah 1:12. यिर्मयाह का पहला अध्याय 12वें वचन. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ. Then the word of the Lord came to Jeremiah. परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को आया. God is telling Jeremiah, you have seen well. You have seen it. और प्रभु ने बोल रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है. What I read is a King James version. मैं जो पढ़ा है वो किंग जेम्स वर्जन है. I'll tell you simple versions. मैं एक सुलभ का एक वर्जन. Jeremiah, now you have seen well. यिर्मयाह तो अभी अच्छा देखा है. I am ready to perform my word. मैं सिद्ध हूँ, तैयार हूँ मेरा वचन पूरा करने के लिए. Hallelujah. NKJ says, I am ready to perform my word. मैं तैयार हूँ मेरा वचन करने में बोल के NKJV में बोलता है. Say, my Father is ready to perform his word. मेरा पिता उनका वचन करने के लिए तैयार है. Hallelujah. Say, I told you,
surely goodness and mercy shall follow all the days of your life. मैं आपको बोला था आपके जीवन के हर दिन वहां पे अच्छाई और दया आपके Okay. पीछे हो लेता बोल के Tell me, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And my Father is ready to perform His word. निश्चय है अनुग्रह और अच्छाई मेरे पीछे हो लाता है मेरे जीवन के दिन तक. परमेश्वर उनका वचन पूरा करने में तैयार है. Means today goodness and mercy will follow me. आज अच्छाई और दया मेरे पीछे हो लेता है. Tomorrow it will follow me. कल के दिन भी मेरे पीछे हो लेता है. Prosperity will follow me. उन्नति भी मेरे पीछे हो लेता है. Health will follow me. तंदुरुस्ती मेरे पीछे हो लेता है. Why it will follow? क्यों वो पीछे हो लेता है? God is ready to perform His word. और खुदा तैयार है कि उनका वचन पूरा करने में. Hallelujah. हालेलुया. You know, we believe that God's word, which is settled in the heaven. हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का वचन वो वहां पे स्वर्ग में भी वहां पे रखा गया है. In NIV says like this. NLT ऐसा कहता है. God says, Jeremiah, you have seen correctly. और खुदा कहता है यिर्मयाह को, यिर्मयाह तू अच्छा देखा है. For I am watching to see that my word is fulfilled. अभी मैं देख रहा हूं कि मेरा वचन पूरा करने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. God is telling, I am watching now to see my word is fulfilled. मेरा वचन पूरा करने के लिए मैं वहां पे देख रहा हूं और जागरूक हूं बोलकर कह रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Are you happy? आप खुश हैं? One more time, say it to me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I believe it. निश्चय दया और अच्छाई मेरे पीछे मेरे जीवन के दिन पीछे हो लेता है. मैं उसको विश्वास करता हूं. The moment you tell it, जिस क्षण में आप बोलते हैं God is watching. खुदा वहां पे देख रहा है. What is watching? क्या वो देख रहा है? How His word will be fulfilled in your life. कैसा उनका वचन आपके जीवन में पूरा How होता है बोल के. today it will follow you. कैसा आज आपके पीछे हो लेता बोल के. How prosperity will follow you. कैसा उन्नति आपके पीछे हो लेता बोल How के. love, joy, peace will follow you. कैसा प्रेम और आनंद और सत्य आपके पीछे हो लेता बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me? That's why I said we should not go on our feelings. We should not go on the circumstances. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो हमको जो लगता है उसको देख के हम नहीं जाना चाहिए. जो स्थितिगतियों को देख के हमको लोग नहीं चलना You चाहिए. know, Abraham and Sarah, what miracle was what to tell? 100 years he had a child. 90 years old lady she was. और अब्राहम 100 साल का था तब उनको बच्चा हुआ और सारा ने 90 साल की थी तभी उसकी बच्चा हुआ. We all know about Abraham's faith. अब्राहम का विश्वास हम सभी को पता है. But I believe लेकिन मैं ये विश्वास करता God हूँ was watching Abraham and Sarah. खुदा वहाँ पे अब्राहम और सारा को देख रहा है. ऐसा बोल When can I fulfill my word? कैसा मेरा वचन को वहाँ पे पूरा करता हूँ. When this lady should become pregnant. कब ये स्त्री वहाँ पे When गर्भवती she होती will बोल के. deliver a child. कब ये बच्चों को जन्म देती है बोल When के. my promise will become real. कब मेरा वायदा सच्चाई में होता है बोल के. For your life, every promise God is watching. When my promise will become real, when my promise will become, when it will be fulfilled. आपके जीवन के लिए खुदा ने उनकी वायदों को वो देख रहा है कब मैं इनके अंदर पूरा करूं, कब मैं पूरा करता हूं बोल के. You know, there is one more translation. और एक भाषांतर कहता है Makes very simple. बहुत ही आसान है. It says, I will make every word I'll give you come true. और मैं हर एक वचन सत्य में होना का मैं करता हूं. I'll make sure your word becomes true in your life. मैं निश्चय कर लेता हूं कि वहां पे वचन आपके जीवन में सत्य होता है बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me? आप मेरे साथ है. You should be convinced now. When God's word says it, it will happen. कब खुदा बोलता है
बोलने के बाद आप वहां पे पक्की कर लेना चाहिए, ये हो जाएगा बोल As के। I said, write the goal, write the promise. इसलिए आपको बोला था कि वहां पे लक्ष्यों को लिखिए और वायदों को लिखिए। When you read the promise, believe it is done. My God is fulfilling it. कब वो वायदों को आप पढ़ते हैं तो वहां पे विश्वास करिए, मेरा खुदा ये कर चुका है बोल के। If you are convinced, अगर आप पक्की यकीन आपको होए तो that is a foundation for your faith. आपका विश्वास का एक प्रारंभिक अंश वो है, That is a foundation. वही वहां पे बेस है यानी जड़ है। Faith is not some feeling. Faith is not some excitement. विश्वास बोले तो कहीं मुझे लगता है ऐसा उत्सुकता होता है बोल के उसके ऊपर निर्भर नहीं है। God said it, it will happen. खुदा बोला है वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 24 verse 35. मत्ती का 24वां अध्याय 35वां वचन। Heaven and earth shall pass away, but my words shall not. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। Hallelujah. Heaven and earth will fail. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, My words will never fail. मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Are you here? क्यों आप यहाँ पे हैं? How faith comes? कैसा विश्वास आता है? Faith comes by hearing God's word. विश्वास परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से आता है। Word of God is a source of your faith. और परमेश्वर का वचन ही वो विश्वास का मूल श्रोता है। You can have 200% confidence, 1000% no problem. Whatever happen, the word will perform miracle for me. Word will become real in my life. और 200 या 1000% आप वहाँ पे पक्की कर लाना चाहिए कि वो ये वचन जो बोला है वो हो जाएगा, पक्की में जो निश्चय यकीन है वो हो जाएगा बोल के। But this world is full of lies, लेकिन ये संसार है ना पूरा झूठे से भरा हुआ है, full of deceit, पूरा वंचना से भरा हुआ है dishonest people. और अप्रामाणिक लोग हैं वहाँ पे। But in this world, लेकिन ये संसार में we have unchanging God's word. हमको बदलना नहीं बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। Bible says, बाइबल कहता है this world is in the grip of the evil one. ये संसार शैतान के हाथों में है बोलकर कहता है। Who is he? और वो कौन है He व्यक्ति? is a father of lies. वो झूठों का पिता है। Everybody tells lies. सब लोग झूठ बोलते हैं, But परंतु our God is not a man to tell lies. हमारा खुदा मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। What he said, he will perform it. जो वो कहा है वो करता भी है He will hasten to perform his word. और वो करने में वो विश्वास योग्य है, वो करता है। वो Now listen to me. क्या बोल रहा हूँ? Sit. Yeah. Thank you. Now listen. यहाँ पे Little, I सुनिए, need your attention. Okay. आपका ध्यान चाहिए इधर। You should meditate this word, think about this word, comfort this word of God so much, it should become a part of your life. ये वचन इतना हद तक आप ये करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, आपका जीवन का एक भाग है बोलकर आप लेना चाहिए। Faith becomes unconscious reality in your life. विश्वास आप बिना सोचने से ही वो अंदर बसी रहना चाहिए। You understand what I mean? आप समझ रहे हैं? For example, उदाहरण के तौर में see, you are driving a vehicle. आप एक गाड़ी चला रहे समझो, What do? First, पहला आप क्या करते थे? you remember how to start. आप वहाँ पे याद करते हैं आप कैसा You have to apply clutch, change gear. Every time when you change, you remember what your coach said. और कैसा चालू करना, कैसा वो गियर डालना, कैसा क्लच पकड़ना, जो आपको सिखाए कोच वो उसको याद कर लेते हैं। Every time you remember, you do this. हर दिन आप वो याद में लाते हैं क्योंकि वो करने के You लिए। think, while doing, you think what he said. आप करने में ही आप वो क्या कहा बोलकर सोचते हैं, You are conscious about it. उसके बारे में आप जागरूक है, वो करते रहते Now, हैं। faith should not be like that. विश्वास ऐसा नहीं रहना चाहिए। You should practice so much. और आप इतना प्रैक्टिस करे हुए रहना। Now when I start the car, अभी मेरा कार को मैं I शुरू करे don't तो think when I should change, how I should change. It happens automatically.
कब मैं बदलता हूँ ऐसा ऐसा बोल के वो मैं नहीं सोचता हूँ, वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही I'm करते not जाता so हूँ मैं। conscious. It happens, changing gear, clutch, everything. I don't think about it. It happens. और उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, मैं ऐसे ही गियर डालता रहता हूँ, क्लच को पकड़ के ऐसे ही जाता रहता हूँ मैं। Faith should become unconscious reality in your life. विश्वास आपके जीवन में ऐसा सच्चाई होना चाहिए, उसके सोचना ही चाहिए बोलकर आप नहीं सोचना चाहिए Then उसको। your language will change. तभी आपका भाषा जो बोलते हैं ना वो बदलता है, Your action will change. आपका काम जो क्रिया में करते हैं ना वो बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? We all eat food. हम सभी लोग खाना खाते हैं। Why we eat food? क्यों खाना खाते हैं? Hello. Where for water? Rocket science, no? Big question it is. Why we eat food? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों हम खाना खाते हैं? We eat for tongue, we eat for stomach. हमारा जीवन के लिए क्या हमारा पेट के लिए? We eat for our body, we need nutrition. हमारा शरीर के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए इसलिए। Yes or no? है क्या नहीं? You keep biryani in your mouth, you will get nutrition. आपको मुंह में बिरयानी रख लिए तो ही उतने में ही आपको न्यूट्रिशन मिलता है क्या? It should get inside. वो अंदर जाना It चाहिए should get digested. और वो जीर्ण होना चाहिए। What is the nutrition in your food should get mixed inside you. और वो न्यूट्रिशन आप जो पा लिए ना वो आपके अंदर जाके मिलावट होना चाहिए, Then it will have some impact. तभी आपके ऊपर वो प्रभाव डालता है। Word of God should become like that. वचन वैसा, परमेश्वर का वचन ऐसा होना चाहिए। Jeremiah 15:16. यिर्मयाह 15वीं अध्याय 16 वचन। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरा वचन मेरा मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। Enough. He says, thy words were found and I did eat them. जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे मैं उन्हें मानो कि खा लिया बोल के, I ate them is telling. वो खा लिया बोलकर वो कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You don't literally eat with your mouth. वो ऐसा नहीं है कि आपके आप मुंह से खा लेना, You take it inside. आपके अंदर वो लेना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Do your homework. आपके घर का जो कर रहे घर में Write काम all करिए the और promises. सारा वायदों को लिखिए। Keep telling, keep telling, keep telling. आप बोलते And रहिए every promise when you read, और एक वायदा जो आप पढ़ते हैं remember, और याद करिए, the one who promised is faithful. जो वायदा किया है वो विश्वास योग्य है बोल He के, is watching when he can perform it. और वो देख रहा है कब मैं करूं बोल के। If you meditate like this, ऐसा आप ध्यान किए तो it will impact your language. वो आप जो बात बोलते हैं ना उसके ऊपर वो प्रभाव Your डालता है। regular language will be a words of faith. आप हर दिन का जो भाषा बात करते रहते हैं ना वो विश्वास की बातें रहता है। It gives, just like how food gives nutrition, the faith will be mixed in your blood. और कैसा ये न्यूट्रिशन हमारा अंदर जाके मिलावट होता ना, कैसा सेहतमंद देता ना, वैसा विश्वास हमारे अंदर जाके वो काम करता है। Faith will be mixed in your blood. आपका विश्वास आपके खून में वहाँ पे मिलावट होता है। You will be a man of faith. आप एक विश्वास का व्यक्ति आप बनते हैं। You will be a woman of faith. आप एक विश्वास का स्त्री आप बनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. How many of you understand what I'm saying? कितने लोग समझे मैं बोलने का? What is the basis for your faith? आपका विश्वास के लिए मूल कारण क्या है? Word of God. परमेश्वर का वचन। Word of God is behind your faith. परमेश्वर का वचन आपका विश्वास का एक जड़ है। God is behind this word. और उनके वचन के पीछे परमेश्वर है। Angels are behind this word. और स्वर्गदूत उनके वचन के पीछे The है। whole throne of God is behind this word. पूरा परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर के वचन के When पीछे you है। start believing, कब आप विश्वास करने में शुरुआत करते हैं, one word will not fail. एक वचन भी वहां पे हारता नहीं है, टलता नहीं है। Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. निश्चय ही आपके जीवन के हर दिन और अच्छाई और दया आपके पीछे हो लेता है। Hallelujah. हालेलुया।